सेमीफाइनल मुकाबले अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाले हैं। हरियाणा की स्तुति धंडानिया, जाह्नवी चौरदिया, जिया मेहता, हिमाचल प्रदेश की श्वेता ठाकुर और हरियाणा की ही अनुष्का मर्चेंट। स्पीड स्केटिंग, शॉर्ट ट्रैक 300 मीटर सेमीफाइनल 1। स्पीड स्केटिंग एनडीएस आइस हॉकी स्टेडियम ले। और शुरू हो गई हैं। और शुरू से ही आपको पता चल गया है कि हेलमेट नंबर 211 काफी अच्छी खासी बढ़त उन्होंने ले ली है और यहां तक कि अब एक राउंड की बढ़त उन्होंने बढ़ा ली है। इस सेमीफाइनल मुकाबले से 2 खिलाड़ी आगे जाने हैं और इसी के साथ हेलमेट नंबर 211 जिनसे एक फॉल्स स्टार्ट भी हुई थी, सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल करके अबाउट 17 Right now you have the under 17 first semi-final in the speed skating short track 300 meters for women, and after the 3 semi-finals where 2 would be selected for the finals. वर्षा पुराणिक हरियाणा की रैना, हिमाचल प्रदेश की सानिया ठाकुर, कुंग जैंग सिंह हिमाचल प्रदेश की और निहारिका राजे भोसले। एक्शन अबाउट टू बिगिन, सेमीफाइनल 2। Well, the race has started now. 3 laps to be completed here. You can see the markers designating the circumference of this first semi-final. Speed skating, short track for women. And you can see the glide right now across the bend and the hand movement, the arm movement to get speed. That's the second lap going on right now. The speed skater in bib number 231 in the lead, wearing the blue tight-fitting outfit. Now into the third and final lap. She's gliding. तो 315 हेलमेट की ये है शॉर्ट ट्रैक गर्ल्स अबाउट 17 सेमीफाइनल 3। महाराष्ट्र की स्वरली देव, पद्मा चुराल लद्दाख की, शगुन ठाकुर हिमाचल प्रदेश की, यरम शेट्टी आंध्र प्रदेश की, वफा तारिक जम्मू कश्मीर की और अभिश्री जगताप महाराष्ट्र की। Well, the gun has gone off and you have one speed skater on your screen in front, wearing bib number 175. As she rounds the bend in the first lap. There are 3 laps to be completed. And doing well with the arm movement, getting the momentum. It's all about stroking and gliding. The control around the bend is seen there. Very important for the blade runners under the boots to grip the ice. Doing well there. Into that third lap now, and she comfortably wins this semi-final, making it to the final in the short track 300 meters. Speed skating will take place up until 10 o'clock in the morning, and that would be followed by ice hockey. Without any emotion, but finally a smile on her face as she's won this semi-final, gliding through, and you can also see the pucks being used as markers, wearing the India jersey, bib number 175, the winner of this semi-final race. अभी जो सेमीफाइनल मुकाबले हुए उसके बाद ये फाइनल मुकाबले, 6 प्रतिद्वंदी जिन्होंने सेमीफाइनल में कमाल किया था,
पहले लेन में स्तुति दंदानिया हरियाणा की, जानवी चोरदिया महाराष्ट्र की, वर्षा पुराणिक कर्नाटक, रैना हरियाणा, स्वरली देव महाराष्ट्र, वफा तारिक जेएनके। और 231 हेलमेट नंबर पहने हुए एथलीट ने लीड ली है और यहां पर स्टार्ट लेना बहुत आवश्यक रहता है क्योंकि कमबैक करने का समय नहीं मिलता है। 1 लैप ओवर देखते ही देखते और अब 2 लैप और बचे हैं। 315 सबसे आगे, लास्ट राउंड का कॉल आ चुका है। Well, very interesting winner here. She's wearing 2 bib numbers. The one in the blue tight outfit, showing a tremendous technique there. And remember, the start is everything. And then maintaining that lead. Strong strides. We saw the stroking on her part. And then, of course, gliding across the bends. Winning that quite comprehensively. We also saw one speed skater crash, in fact, in the first lap itself. Let's have a look at the replay here. This is where the winner of the final, how she was able to maintain that lead. And wearing bib number 175, she was careful not to trip, but 211, the one in the helmet, this is where she lost her balance. She was using her left hand to balance herself, but slipped unfortunately. And kudos to the winner, नीली पोशाक में, जिनके स्केट्स टकराए थे जरूर, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना बैलेंस बरकरार रखा। तो शॉर्ट ट्रैक में यही होता है, एक बार अगर आपको स्टार्ट मिलता है तो फिर आपको कमबैक करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं क्योंकि समय नहीं रहता है आपके पास। और जो खिलाड़ी आगे रहता है वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। दे हैव देयर डिफरेंट टेक्निक्स नॉट ओनली टू एक्सीड देमसेल्व्स बट टू स्टॉप देयर ओपोनेंट आल्सो। Short track girls under 17, पहला semi-final. Let's have a look at the start list. Padma Angmo, लद्दाख की, स्कार्मा सुलिटिम लद्दाख की, स्वरूपा कात देशमुख महाराष्ट्र की, चाहत हरियाणा की, मुत्ताकानी विश्वनावी तेलंगाना की और रूही शर्मा हरियाणा की। ये है आपके 6 स्पीड स्केटर्स जो पहले सेमीफाइनल में हिस्सा लेंगी। अभी दे राइट बिहाइंड द स्टार्ट लाइन। और फिर से इनर लेन लेने की जद्दोजहद, सेमीफाइनल मुकाबला ये। और 215 हेलमेट पहने हुए स्केटर बड़ी आराम से एक लीड उन्होंने बना ली है। और जब यहां पर आप इतनी लीड बना लेते हैं 7 से 8 मीटर की, फिर वो आप छोड़ते नहीं है अनलेस कि आप ही कोई बहुत बड़ी गलती कर बैठे। टेक्निक बहुत अच्छी है। यू कैन सी हर now she is in a very gliding phase. She knows that she is already there. She does not have to do anything exceptional. और आसानी के साथ ये सेमीफाइनल मुकाबला जीत लिया है। लद्दाख की खिलाड़ी ने दूसरा स्थान हासिल किया। Let's have a look at the start list for the semi-final 2 under 17 short track girls. नयना श्री तलूरी तेलंगाना की, रिधि पटेल हरियाणा की, इंशा फातिमा लद्दाख की, उद्रेका सिंह मध्य प्रदेश की, तास्निया शमीम लद्दाख और शबाना जारा लद्दाख की। ये है 6 स्पीड स्केटर्स जो सेकंड सेमीफाइनल में हिस्सा लेंगी। ऑन योर मार्क, गेट सेट एंड गो। टोटल ऑफ 3 लैप्स टू बी अंडरटेकन। ये पहले लैप में है and already a lead has been taken. It's all about the lead by 174. उम्मीद कर रहे हैं कि पीछे से स्केटर उन पे जरूर दबाव बनाएंगे, लेकिन वो जगह नहीं दे रही हैं। लीड पे आ गई हैं। शी विल नॉट अलाउ हर फेलो स्केटर टू ओवरटेक हर। और अब सब कुछ नेक एंड नेक का सेमीफाइनल मुकाबला।
अब कुछ ही आधा लैप बचा हुआ है और अपना हाथ टेकते ही उन्होंने सेमीफाइनल जीत लिया है। बहुत ही शानदार अनुभव, टेक्निक, प्रेजेंस ऑफ माइंड। 235, she was lagging behind at number 2 right from the start, trying to get forward. अंडर 17 फाइनल गर्ल्स के लिए फिर से एक बार आपके सामने महाराष्ट्र की स्वरूपा, लद्दाख की पद्मा और स्कर्मा लेन नंबर 2, लेन नंबर 3 में, लेन नंबर 4 में नैना श्री तलूरी तेलंगाना की, लेन नंबर 5 में उद्रेका मध्य प्रदेश की, और लेन नंबर 6 में लद्दाख की सानिया शमी। On your marks, get set, and go. The gun has been heard now, and it's once again the skater on your screen wearing bib number 215 in the lead in the first lap. Total of 3 laps, and it is a girl from Telangana looking to use that inner lane in the bend in 235. Just watch her, and she's trying to use the outer lane as well. And she takes the lead right there in the second lap. This is the third and final lap. This is a fight between 235 and 215. And it's a girl from Telangana on your screen. Just the way she won the second semi-final, she has now won the final as well. Tremendous performance there, Mahavir. Tremendous technique as well. And this shows control, how you're able to stroke and glide at the crucial moment in the bend. क्योंकि straight में तेज निकालना आसान है, बेंड में किस तरीके से आप ओवरटेक कर सकते हैं, इस लड़की ने दिखा दिया। और खास बात ये रही कि जैसे हम कह रहे हैं कि जो इनर सर्कल है, जो पक है, उनके एकदम करीब से दोनों जा रही थी। एंड द गर्ल फ्रॉम तेलंगाना 235 नंबर, ये रिप्ले एडवांटेज जरूर 215 को था। उन्होंने इनर लेन एक तरीके से अपना ली थी, एंड दे वर नॉट गिविंग एनी स्पेस टू दे फॉलोवर टू ओवरटेक देम। और आप देख सकते हैं कि इस समय जरूर इनको लगा था कि ये थोड़े कंट्रोल में है, लेकिन तेलंगाना की स्केटर ने देखा, पहले थोड़ा सा राइट में गए, फिर लेफ्ट में आए, एंड इट्स अ ग्रेट टेक्निक टू कीप देयर हैंड डाउन, टू बी एज नियर टू द इनर लेन एज पॉसिबल। और यहां पे आके उन्होंने एक बार ओवरटेक कर लिया, और जब उनको बढ़त मिली तो वही प्रयास 215 नंबर की स्केटर ने किया, लेकिन the Telangana skater was smart enough not to give any room. और ये 300 meters कब खत्म हो जाते हैं ये पता भी नहीं चलता है। Very rare that you allow anyone to overtake a good lead, and a lot of experience being shown by the skater. Skill obviously, but experience also, how to overtake, and she is the gold medal winner. और ये सेमीफाइनल लाइनअप रेडी है। सुयोग तपकीर, आकाश आराध्य, सोहन तरकार, अथर्व परदेसी, शुभांग मुंजल। And the gun has gone off. Once again a good start by the speed skater in the red, but already being challenged by the speed skater in 38. बहुत ही बढ़िया इन्होंने ओवरटेक किया है at the curve and bend in the first lap. दूसरे लैप में अभी बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं इन दी कर्व। 2 लैप हो चुके हैं महावीर, तीसरे लैप में हम अभी। ये नेशनल मेडलिस्ट हैं आकाश 140 में, कर्नाटक के। एंड पिछली बार हमने देखा कि ही जस्ट केम सेकंड इन द हीट्स बिकॉज ही न्यू दैट ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट राउंड का कॉल है, अभी भी उन्हें पता है कि ही हैज जस्ट हेल्ड बैक हिमसेल्फ। और बहुत मुश्किल है 5 राउंड इस -20 के टेम्परेचर में लगाना, और दोनों खिलाड़ी इस जीत के साथ फाइनल में पहुंच गए हैं। और ये लिस्ट है सेमीफाइनल, सेकंड सेमीफाइनल की। शॉर्ट ट्रैक बॉयज अबाउ 17, हर्ष कसोंधन मध्य प्रदेश के, सुमित टपकीर महाराष्ट्र के, मुतुगानी विष्णुवर्धन तेलंगाना के, नोएल चार्ली शेरियन मध्य प्रदेश के, ओमकारा योगराज कर्नाटक के।
160, keep your eye on 160. 108, 160. शुरुआती बढ़त ले ली है. अच्छा बैलेंस, अच्छे स्किल्स. 160 के पीछे पीछे 158 है. उन्हें ओवरटेक कर लिया है सेकंड नंबर की पोजीशन में. अच्छा ओवरटेक रहा वहां पर. लास्ट राउंड का कॉल है. 108 ने अभी तक बढ़त बना ली है. ठीक उनके पीछे है 156 और इन दोनों खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल 1 जीत लिया है. For the last 7 years, very interesting. अब है स्टार्ट लिस्ट इन दी अबव 17 फाइनल 500 मीटर्स. आकाश आराध्या कर्नाटका के, बिब नंबर 140. सुयोग तपकिर महाराष्ट्र के, सोहन तरकार महाराष्ट्र के, सुमित तपकिर महाराष्ट्र के, ओमकार योगराज कर्नाटका के और नोयल चार्ली चेरियन मध्य प्रदेश के. The first lap now. Bib number 38 has taken the lead. 116 in second place. That's the end of the first lap. 12 seconds. Good timing there. Into second lap now. Akash from Karnataka. Akash from Karnataka has made a lead, but he should not give up because this is the final. एक हाथ उनका बैलेंस कर रहा है. He's coming as near to the pucks as possible. बिल्कुल भी ओवरटेक करने की जगह नहीं दी जा रही है. इट्स एक्सपीरियंस. लास्ट राउंड का कॉल है. 140 बीप पहने हुए आकाश मैसूरू कर्नाटक के एक बढ़त बना ली और ये फाइनल कब है और इसी के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया है. और सुयोग और सुमित तापकीर दो भाई सेकंड और थर्ड पोजीशन में रहे हैं. आकाश आराध्या 140 नंबर, बहुत अच्छी टेक्निक उन्होंने ली और वो फर्स्ट लेन में थे. वहीं से उन्होंने, आप शुरू में देखें किस तरीके से उन्होंने पहले चार्ज किया, एक लीड ली और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा. देखिए किस तरीके से, बहुत ही अच्छा स्टार्ट था. तापकीर, सुयोग तापकीर जो लाल कॉस्ट्यूम में है वो बिल्कुल उनके पीछे रहे, एक तरीके से चैलेंज करते रहे. लेकिन जो कर्व्स हैं, आपको ओवरटेक करने की जगह मिलेगी तभी तो आप ओवरटेक करोगे. अपना अनुभव, नेशनल मेडलिस्ट है आकाश, मैसूरू कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और अपना अनुभव देखिए. लेफ्ट हैंड बिल्कुल भी उन्होंने यूज नहीं किया है, सिर्फ सपोर्ट के लिए. एज क्लोज टू द इनर लेन एज पॉसिबल, ताकि किसी को ओवरटेक करने की वो जगह ना दें, क्योंकि राइट से ओवरटेक करना उतना ही ज्यादा मुश्किल, उतना डिस्टेंस आपको ज्यादा क्रिएट करना पड़ता है और समय शॉर्ट ट्रैक में होता नहीं है. तो ये रिप्ले रिजल्ट्स, तापकीर बंधु सिल्वर, ब्रॉन्ज और टीवी स्क्रीन पर आकाश आराध्या कर्नाटक के गोल्ड मेडल के साथ. We can see the timings here. Akash Aradhya, 54.91 seconds, 5 laps. Suyog Tapkir of Maharashtra, 55.27 seconds. Sumit Tapkir, who won the bronze medal, 57.59 seconds. In fourth place was Omkar Yograj, and in fifth was Noel Charlie Cherian. Took 1 minute, 3.8 seconds. This is a Group A match in ice hockey between Haryana and ITBP. हरियाणा येलो में, आईटीबीपी अपने ट्रेडमार्क व्हाइट एंड ऑरेंज में.
दिस इज कॉल्ड पावर, दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन। डीके जूनियर आखिरी मौके पर डिसेप्ट किया और सीधा गोल पोस्ट की आवाज कमेंट्री बॉक्स तक आई। हरियाणा 4 डिफेंडर्स के साथ एक गोलकीपर, स्पेस नहीं दे रही है वो आर्मी को कहीं से भी। एक और लॉन्ग रेंज ट्राई और एक और कामयाबी। और बड़ी तरीके से प्लेस किया उन्होंने। दूसरा गोल आईटीबीपी के फेवर में। और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि काफी सुबह से इस रिंग पे। और ये एक और गोल। नंबर 47 नानम बहुत ही बढ़िया, उन्होंने बॉडी चेक करने की कोशिश की हरियाणा के जो डिफेंडर्स हैं, बट कामयाब नहीं हुए। लूजिंग पोजेशन बानी, और यहां पे चौथा गोल बानी के द्वारा। रिप्ले देख लेते हैं यहां पे, जहां पे इन्होंने पास दिया, पास वापस आया और इजीली द फोर्थ गोल बाय आईटीबीपी। दूर दूर से ही गोले दागे जा रहे हैं। ये अच्छा लकी रहा हरियाणा, और लेकिन कब तक लकी रहते। 47 नंबर नानम ने ये गोल किया है। पहला अटेम्प्ट तो रोक पाए थे, लेकिन दूसरा जो डिफ्लेक्ट होके गया गोलकीपर के लेफ्ट शोल्डर से। अच्छा प्रयास, लगातार प्रयास कर रही है आईटीबीपी की टीम। हम देख रहे हैं कि लॉन्ग रेंज को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, और कामयाबी उन्हें मिल रही है। स्माइल। अब आप देखिए, पास दिया गया, डिफेंडर्स को एक डायरेक्शन में छकाया गया। छठा गोल, 20 सेकंड बाकी हैं। राइट विंग को मिल गया है और स्लैप शॉट गोलकीपर की तरफ, और इस बार रिबाउंड करते हुए 7वां गोल भी इन्होंने स्कोर कर लिया है। नंबर 99 इस्माइल, एंड आईटीबीपी हैज once again shown that why is it that the police and the defense forces dominate ice hockey. डीके जो आईटीबीपी के हैं, गिविंग अ बैक पास और गोल। 8-0, बहुत ही बढ़िया स्लैप शॉट, बीटिंग द गोलकीपर। और वहां से एक और प्रयास है, एक और गोल। आप देख सकते हैं पहला प्रयास तुरंत एक लॉन्ग शॉट की उम्मीद है यहां से, बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन भेद नहीं पाए गोलकीपर के डिफेंस को। एक और अटैक, लेकिन खुशकिस्मत रहे कि पोस्ट पे टकराई है। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। पक भी उन्हीं के गोल पोस्ट के पास रही, जद्दोजहद हुई और आखिरकार धकेल दिया। तो 10-0। And number 99 getting that assist and scoring effectively with that flick. 11-0 now. Attempting a pass to the center. मौका मिला और स्कोर कर दिया बाकू ने। There was no body check by Haryana in front of the crease. 3-2-1, क्या आखिर के सेकंड में कुछ गोल हो पाता है? नहीं, प्रयास करने का मौका आखिर है, लेकिन डिफेंड। 13-0 से खत्म ये मुकाबला। जो दूसरा गोल है इस पीरियड नंबर 3 का, आखिरी कुछ सेकंड में गया, और 13-0 से। और अब खिलाड़ी आपस में हाथ मिलाते हुए, काफी कुछ हरियाणा ने जरूर सीखा होगा। Well, the next ice hockey match here at the NDS Hockey Stadium at Leh, Ladakh is between Maharashtra and the Union Territory of Ladakh. Interesting tactics by Maharashtra so far. 5 मिनट हो गए हैं। यहां पे UTL ने, जैसी मैंने कहा, ट्रिमेंडस फोरहैंड से उन्होंने स्नैपशॉट खेला। Let's have a look at the replay there with the score 1-0 by UTL against Maharashtra. गेटिंग बैक टू द सेंटर, और यहां से लॉन्ग रेंज का अटेम्प्ट होगा, लेकिन फिर से बहुत अच्छा पास है। ब्यूटीफुल पास फ्रॉम द बैक ऑफ द गोल पोस्ट। अच्छा तालमेल 18 नंबर और 5 नंबर के बीच में। ये देखिए, पास दिया और बिल्कुल भी समय नहीं लगाया।
तो तमाम तरीके के सवाल यूटी लद्दाख की टीम पूछ रही है एंड ही वाज द गोलकीपर सेज ही वाज ब्लाइंडेड बाय द पीपल सराउंडिंग हिम बट दैट्स अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटेजी। अगर आप देखें तो जानबूझकर यूटी लद्दाख के खिलाड़ी हैं, दे मेक लाइफ मिजरेबल फॉर द गोलकीपर। 3-0 से आगे है यूटीएल। क्या एक अटेम्प्ट और हो सकता है गोल पे, लेकिन समय बहुत ले रहे हैं। लेकिन खराब अब 1-on-1 है गोलकीपर के पास और ये रूटीन गोल जैसे कि ड्रिल्स में आप करते ही हैं। कैसा आप गए, एक खिलाड़ी गोलकीपर को छकाया, 8 नंबर ने आप देखा किस तरीके से पास दिया इन मौके पे। और ये लोकल लद्दाखी एंड दिस टाइम गुड असिस्ट पिक्ड अप बाय नंबर 18, जिन्होंने बड़े आसानी से रिस्ट फ्लिक करते हुए गोल कर दिया। 5वां गोल। रिप्ले देखते हैं यहां पर। महाराष्ट्र के प्लेयर्स सबस्टिट्यूट भी हो चुके हैं। यहां पे बड़े आसानी से क्रीज एरिया में आके नंबर 10 लद्दाख के खिलाड़ी ने 6ठा गोल किया, क्योंकि जो बॉडी चेक हमने पहले देखा है इस बार नजर नहीं आया। 6ठा गोल बाय यूनियन टेरिटरी लद्दाख। और एक और मौका, बहुत बढ़िया ब्लॉक बाय दी गोली। स्टिक हैंडलिंग की जरूरत है, क्योंकि स्टिक हैंडलिंग से एटलीस्ट आप अटैकर को अलाउ नहीं करते। इसी बीच जो है बैकहैंड से उन्होंने फ्लिक कर दिया इनसाइड द क्रीज एरिया। 7वां गोल यूटीएल का। दोबारा डिफेंडर जो है नंबर 15 फॉरवर्ड लाइन को फीड करते हुए, मोमेंटम है उनके पास और बहुत ही बढ़िया गोल। नंबर 2 डिफेंडर ने कुछ नहीं किया महाराष्ट्र के। लुक एट द रन ऑफ दिस यूटीएल फॉरवर्ड, ट्रिमेंडस, प्लेस्ड इट, गोली हैड नो चांस एट क्रॉस गोल लाइन। बॉडी चेक करते हुए मौका नहीं मिल रहा है यूटीएल को। और इसी बीच एक और गोल फ्रॉम द राइट। बस रिस्ट फ्लिक की जरूरत थी, रिस्ट शॉट की जरूरत थी। 10वां गोल, द 10th गोल स्कोर्ड बाय यूनियन टेरिटरी लद्दाख। और बहुत ही बढ़िया ब्लॉक रहा गोली का। इट वॉज अ वेल डायरेक्टेड स्लैप शॉट, यहां सेंटर लाइन से भी स्लैप शॉट, और दिस टाइम फाइंडिंग द टारगेट अक्रॉस द गोल लाइन। द स्कोर इज नाउ 11-0। और रिप्ले में यहां देख सकते हैं कि लॉन्ग रेंज शॉट से उन्होंने गोल कर दिया। से महाराष्ट्र के डिफेंस को भेदने, छेदने का प्रयास करते हुए बहुत ही अच्छा पास यहां पे, और कन्वर्ट किया उसे 10 नंबर के यूनियन टेरिटरी के खिलाड़ी। बिल्कुल अपने मोशन में थे, कहीं रुकना नहीं पड़ा। बहुत अच्छा पास, ये देखिए 10 नंबर के खिलाड़ी। और अब 12-0, 4 मिनट का खेल इस पीरियड में खत्म हो गया है। एक गोल हुआ है। बैक पास किया महाराष्ट्र, लेकिन उनका कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। एक लॉन्ग रेंज अटेम्प्ट और सही इंटरसेप्शन। देखना होगा कि 11 नंबर के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट करके गोल किया है, तो रिबाउंड आया है, या फिर सीधा लॉन्ग रेंज की हिट से ये गोल हुआ है। लग तो यही रहा है कि सीधे टकरा कर गेंद गई है, किसी की हॉकी नहीं लगी है बीच में। समय बहुत कम बचा है, आखिरी लॉन्ग अटेम्प्ट का प्रयास हो सकता है, लेकिन ये भी कामयाब नहीं हुआ। तो 13-0 से 3 पीरियड खत्म हुए। यूटी लद्दाख ने ये अपना मुकाबला जीत लिया है। महाराष्ट्र की ये लगातार दूसरी हार। कल इंडियन आर्मी के खिलाफ उनकी हार हुई थी, आज यूटी लद्दाख के खिलाफ उनकी हार हुई है। 13-0 लद्दाख ने महाराष्ट्र को हराया है।